ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਸਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। जरनैल सिंह जी सिरसा से आए हैं। ये जब आए थे एक आँख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ऐसे ही है जी। जी बिल्कुल। और दूसरी आँख से 25% दिख रहा था और वेरी फर्स्ट डे इनकी नज़र बढ़ने लगी और आज इनकी नज़र 100% सही हो गई। किया था कि इन्होंने अपने भांजे का भी वो करवाया तो उनके 6 नंबर से 4 नंबर हो गया चश्मा, और ऐसा कहा जाता है कि इतनी जल्दी कम नहीं होता, फिर कैसे हो गए? हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ऐसा भी अप्रोक्सीमेटली ठीक हो ही जाता है। पेशेंट से बात करी जरनैल सिंह जी से। जी जरनैल सिंह जब हमारे पास आए थे तब उनको पकड़ के लाते थे लोग, थे उनकी बिल्कुल आंखों की रोशनी तकरीबन नामात्र थी। 1-2 महीने बाद ही उनको थोड़े चमत्कार आने शुरू हुए, तो उनकी निगाह थोड़ी वापस आनी शुरू हुई। अब उनकी निगाह काफ़ी हद तक वो अपना रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं और कुछ चल फिर के आ सकते हैं। क्या अगर किसी को शुगर और बीपी की वजह से आंखों की प्रॉब्लम हो गई है, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, अगर पीछे से निगाह ठीक है, उसकी ऑप्टिक नर्व ठीक है, तो उसका इलाज लगभग संभव है। भी हम शुगर बीपी को साथ में शुगर बीपी को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ हम दवाई देके उसको ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं पिंड बारन, जो कि पटियाला के पास पड़ता है, और यहां पर एक डॉक्टर विर्क हैं, डॉक्टर विक्रमजीत सिंह विर्क, जो कि आंखों की हर एक समस्या का इलाज करते हैं। और यहां पर दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, और सर का एक बेहतरीन फार्मूला है 20 मिनट का फार्मूला, जिसको डालने से केवल 20 मिनट में ही आंखों की रोशनी में फ़र्क देखने को मिल जाता है। आइए जानते हैं, पेशेंट से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको कितना फ़र्क पड़ा, कैसे ठीक हुए, क्या प्रॉब्लम शुरू हुई, कैसे ठीक किया गया, क्या क्या परहेज बताए गए। चलिए बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗਾ? ਵੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਿਖਣਾ ਜਮਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 25 ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਸਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 75% ਦਿਖਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 25 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 75 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਣਵਾ ਦੂਜਾ ਮੰਥ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੰਥ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਚਸ਼ਮਾ ਜਮਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਚਸ਼ਮਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾਗਾ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਡ ਇਨਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਹੇਜ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਇਕੱਲੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ? ਇਕੱਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆਗਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮੰਥ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਚਸ਼ਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ 6 ਦਾ 4 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਘਟਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ पधारने के लिए। सर, जरनैल जी से हमने बात करी थी, इनके बारे में बताइए, इनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे आपने 20 मिनट के फॉर्मूले से ठीक कर दिया? ये जरनैल सिंह जी सिरसा से आए हैं। ये जब आए थे एक आँख से बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ऐसे ही है जी। जी बिल्कुल। और दूसरी आँख से 25% दिख रहा था। जी। और इसको चेक किया, इनका टेस्ट किया, आँखों का भी खून का भी, थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम थी उसके हिसाब से इनको बताया भी आपकी नज़र ठीक हो सकती है। और वेरी फर्स्ट डे इनकी नज़र बढ़ने लगी और आज इनकी नज़र 100% सही हो गई। अब तो ये कह रहे हैं चश्मे से भी छुटकारा मिल गया मेरे को। हाँ, जो चश्मे से दिखाई नहीं दे रहा था अब चश्मा लगता नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। लो, पहले जब आए थे वो चश्मा जो लगा था उसमें भी नहीं दिखाई दे रहा था। आज जो चश्मा इनका था उसकी जरूरत भी नहीं। इनको परहेजों के बारे में बताया आपने कुछ? बिल्कुल बताया, फोन नहीं देखना, मोबाइल जितना कम देखना हो सके उतना कम देखना है, और टीवी पर ज्यादा देर बैठे रहना, टिक टिकी लगा कर नहीं देखते रहना। उसको लोड अनुसार जो भी आँखों की वर्तों करनी है, ज्यादा नहीं करनी। जी। इन्होंने ये भी जिक्र किया था कि इन्होंने अपने भांजे का भी वो करवाया, तो उनके 6 नंबर से 4 नंबर हो गया चश्मा। और ऐसा कहा जाता है कि इतनी जल्दी कम नहीं होता, फिर कैसे हो गए? क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर बंद आँख से दिखने लग सकता है तो नंबर कम होना क्या कितनी बड़ी बात है। हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। अगर कुछ पेशेंट होते हैं जिसका कुछ भी नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ऐसा भी अप्रोक्सीमेटली ठीक हो ही जाते हैं। 20 मिनट वाले फॉर्मूले से उस पेशेंट को भी फर्क मिला था? बिल्कुल मिला था, तभी तो आगे उसका नंबर कम हुआ ना। जो अगर पहले दिन से राम शुरू नहीं होगा तो फिर नंबर कैसे कम होगा, ठीक है नहीं बात। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को हम यही संदेश नहीं बेनती करना चाहते हैं भी अपनी आंखों की संभाल करें। अगर मोटरसाइकिल पर जाएं, स्कूटर पर जाएं तो चश्मा लगाकर, कोई गॉगल्स लगाकर जाएं, और आंखों में सीधा हवा ना लगने दे, और जो पानी की सीटें है वो भी सीधा खोल खोल कर जोर जोर से ना मारें, उसको धीरे धीरे आंखों की जो चुली भरकर ऐसे धोएं, दोनों आंखों की, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट, और मुंह में पानी भरकर उसको भी हम आंखों के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मोबाइल तो बिल्कुल ही बिना मतलब ना देखें, ताकि जो अपनी आंखों की रोशनी लंबे समय तक बरकरार रह सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। सर आपको धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, अभी हम पेशेंट से बात करी जरनैल सिंह जी से, जिनकी आंखें बिल्कुल कमजोर थी और सर का 20 मिनट वाला फॉर्मूला डालकर वो ठीक हो गए। उनके बारे में बताइए कि उनको क्या प्रॉब्लम थी और कैसे हुई थी, कैसे ठीक किया गया, क्या क्या प्रोसीजर रहा? देखो जी, जरनैल सिंह जब हमारे पास आए थे तब उनको पकड़ के लाते थे लोग, जो उनके रिलेटिव्स थे, गार्डियंस थे, वो पकड़ के लाते थे। उनकी बिल्कुल आंखों की रोशनी तकरीबन नामात्र थी। तो डॉक्टर साहब ने रेगुलरली हमने चेक करा, तो उनका डायग्नोज किया, तो उनको जो है काफ़ी बीमारियां साबित हुई। तो उसके मुताबिक डॉक्टर साहब ने उनको चेक करने के बाद उसको सूटेबल, जब उनकी अकॉर्डिंग टू डिजीज़ उनको दवाई डाली गई और खाने वाली दवाई उनको साथ दी गई। उसके बाद 1-2 महीने बाद ही उनको थोड़े चमत्कार आने शुरू हुए, तो उनकी निगाह थोड़ी थोड़ी वापस आनी शुरू हुई। अब उनकी निगाह काफ़ी हद तक वो अपना रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं और खुद चल फिर के आ सकते हैं। डॉक्टर मनोज, मेरा एक सवाल ये था कि शुगर और बीपी
इनका सीधा रिलेशन आइज के साथ कैसे है? और सीधा अगर किसी को शुगर बीपी हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि 10-15 साल के बाद, नहीं तो 5 साल के बाद आपकी आंखों पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कुछ भी बीमारियों के साथ सीधा संबंध होता है, जैसे शुगर बीपी। वैसे तो माना जाता है शुगर बीपी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है। तो जैसे हम पहले बीपी को ले लें, ब्लड प्रेशर जब बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट जब ज़्यादा तेज होती है तो वो सबको सप्लाई ज़्यादा देती है। तो ऐसे ही आंखों का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पीछे से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आंखों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से आंखों की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही शुगर है, थोड़े लेवल तक तो काम चल जाता है, पर पिछले कई सालों से जिसको शुगर है और इतनी हद से ज़्यादा है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना के ऊपर और बहुत सारी आंखों की दूसरी बीमारियां जो शुगर के बढ़ने के कारण जो है, उसके कारण जो है आंखों की रोशनी पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो क्या अगर किसी को शुगर और बीपी की वजह से आंखों की प्रॉब्लम हो गया है, वो यहाँ पर ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल, अगर पीछे से निगाह ठीक है उसकी, आई जो है ऑप्टिक नर्व ठीक है, तो उसका इलाज लगभग संभव है। भी हम शुगर बीपी को, साथ में शुगर बीपी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसके साथ हम दवाई देके उसको ठीक कर सकते हैं। आमतौर पर कॉमनली क्या परहेज बताया जाता है यहाँ पर आंखों को ठीक रखने के लिए? जी, आंखों को ठीक रखने के लिए हम कहते हैं रोजमर्रा की आंखों की सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आंखों के ताजे पानी के छींटे मारना और कोई भी अनगहली ना करना। जब भी आपकी आंखें लाल होनी शुरू हुई, खुजली होनी शुरू हुई, निगाह कम होनी शुरू हो गई, ठीक है जी, या दूसरी कोई बीमारी शुरू हो गई आंखों की, तो साथ ही अपने आंख नजदीक के आंख वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी डायग्नोस करके उसका इलाज हो सके। सर मुझे ये बताइए, जैसा कहा जाता है हमारे पैरों में ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, नंगे पैर घास में चलने से कहा जाता है कहीं ना कहीं एक लिंक आता है सामने कि आंखें थोड़ी बहुत ठीक होनी शुरू होती हैं। उसका क्या मतलब, क्या कनेक्शन है ऐसे? जी, ऐसा कोई साइंटिफिकली नहीं है, पर जैसे दादी माँ के नुस्खे होते हैं, ये सारी वही चीज़ें हैं। अभी आंखों से नंगे पैर चलने से, वैसे तो आजकल जो मिट्टी की ज़मीन पे लोग चलते थे तो उनके पैरों में जान भी होती थी, ब्लड सर्कुलेशन होता था। तो मेरे ख्याल से इसका जो दूसरा रुख है वो है पैरों के नीचे बहुत सारी नसें, नर्व्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कोई आइज़ वाली नर्व्स वहाँ जो लिंक्ड होती है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो मेरे ख्याल से वो जल्दी उसको हेल्थी होने में ठीक करती है। जी, जैसा कि आपने देखा, हमने पेशेंट से बात करी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब का जो 20 मिनट वाला फॉर्मूला है वो कितना ज़्यादा कारगर है और उनकी निगाहें उसी 20 मिनट के फॉर्मूले से ठीक हुई हैं। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।